watch this topic in Hindi, skip the video to 2 minutes and 20 seconds. Hello everyone, welcome to another episode of Legal Update. Today's topic of discussion is Rights of Under Trial Prisoners. First, let us see why is it in the news. In the recent case of Kartik Mohan Prasad vs. State of Maharashtra, the Bombay High Court criticized the Maharashtra police for their mindset of limiting the freedom of under trials who have served over half of their potential maximum sentence. Let's look at the background of the case. The petitioner defrauded the complainant and his friends of Rs 35 crores through fraudulent investment schemes. The petitioner submitted that further incarceration violates the right to life. It was noted that the petitioner was granted bail in December 2017 on the condition of depositing the defrauded amount, which he failed to do. The bench noted that the petitioner has been in jail for 7.5 years and the trial is unlikely to conclude soon. The bench granted bail to the petitioner with a surety of Rs 1 lakh. The court observation was as follows. The division bench comprising Justice A.S. Gadkari and Justice Dr. Neela Gokhale stated that in a democracy, the police should not create the impression of a police state. Let's know more about the rights of under trial prisoners in India. Under trial prisoners in India have various rights protected by the Constitution and legal provisions to ensure fair treatment and justice. Article 21 of the Constitution ensures a speedy trial to prevent prolonged detention, and Article 39A provides for free legal aid. Detention must follow legal procedures and under trials must be treated humanely, with access to adequate medical care, preventing torture or degrading treatment. Under trials also have the right to communicate with family and legal advisors. Let's now discuss a case law related to it. Husainara Khatun vs. Home Secretary State of Bihar case 1979. The Supreme Court held that detaining under trials for longer than their potential punishment violates their fundamental rights under Article 21. Before we wrap up, here's a question for you. Which of the following articles of the Constitution mandates the state to provide free legal aid? Article 36A, Article 37A, Article 38A, or Article 39A? Send the answer to this question in the comment section. Like, share and सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है अंडर ट्रायल कैदियों के अधिकार। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। कार्तिक मोहन प्रसाद बना महाराष्ट्र राज्य के हालिया मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस की इस मानसिकता के लिए आलोचना की है कि वह उन अंडर ट्रायल कैदियों की स्वतंत्रता को सीमित कर रही हैं जिन्होंने अपनी संभावित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि काट ली है। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाओं के माध्यम से शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों से 35 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि आगे की कैद जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। यह ध्यान दिया गया कि याचिकाकर्ता को दिसंबर 2017 में धोखाधड़ी की गई राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई थी, जिसे वह जमा करने में विफल रहा। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 7.5 साल से जेल में है और मुकदमा जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए की शर्त पर जमानत दी थी। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो न्यायमूर्ति A.S. गडकरी और न्यायमूर्ति डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि लोकतंत्र में पुलिस को पुलिस राज्य की छवि नहीं बनानी चाहिए। आइए जान लेते हैं भारत में अंडर ट्रायल कैदियों के अधिकार के बारे में। भारत में अंडर ट्रायल कैदियों को संविधान और कानूनी प्रावधानों द्वारा संरक्षित कई अधिकार प्राप्त हैं ताकि निष्पक्ष व्यवहार और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। संविधान का अनुच्छेद 21 लंबे समय तक हिरासत में रखने से बचने के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 39A मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। हिरासत में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। अंडर ट्रायल कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उन्हें यातना या अपमानजनक व्यवहार से बचाया जाना चाहिए। अंडर ट्रायल कैदियों को अपने परिवार और कानूनी सलाहकारों से बातचीत करने का भी अधिकार है। चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े एक निर्णय विधि के बारे में। हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य मामला 1979। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अंडर ट्रायल कैदियों को उनकी संभावित सजा से अधिक समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 36A, अनुच्छेद 37A, अनुच्छेद 38A या अनुच्छेद 39A? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।